Hello everyone, welcome back to our channel. So in today's video we will be covering Emile Durkheim. Okay, so before starting Emile Durkheim, let me brief about that how we will proceed for further lectures also. So in classical sociology we will be covering Emile Durkheim, then Karl Marx, and after that Weber. Okay, after that we will be covering the structural functionalism school, in which we will be covering Talcott Parsons and Archimedes. Okay, then meet from the hermeneutic and interpretative schools. Okay, after that, we will first of all we will try to complete these and plus some important Indian sociological thinkers before 15th of August. And if the time permits, we will cover some important thinkers like Comte and Spencer and Malinowski or Redcliffe Brown. So let's proceed with the Emile Durkheim. So you might be having these notes of thinkers with you already. Okay. So I will be covering everything from here only. Okay. So, but I will be covering thinkers in much more detailed manner. I will be telling you the background. Okay, first. Once you know the background, it's easy to understand their studies and their research work. So first we will dig into the background, then we will proceed to their studies, then we will study their critique. Okay, but always remember your final notes should be these only because these are very short, compressed, concise, and you don't need anything extra apart from this, in my opinion. But if you think you need to add something, I guess you should value add here only. So let us start with the background of Emile Durkheim. So Durkheim belonged to France, okay, and he is from a Jewish family, okay, right? So his father was a rabbi. Rabbi is basically a Jewish priest. Okay. So initially, Durkheim was also trained to become one. Okay, become one of the Jewish priests. But by the age of 14, he became very agnostic. Okay. Okay. So he was a very, good student in school. So he got admission in a prestigious college in France. But he was again disinterested in college. Okay, because as there is too much of uh, dilettantism, you don't have to remember these fancy words or anything from the background. You just know it to develop a sociological perspective. Okay, so dilettantism means that basically you are familiar with very wide areas, but not very deep learning about anything, any topic. Okay, like you know everything, each and everything, but you don't have specializations. Okay, so he wanted that people should be trained scientifically. So after like completing his education from France, he started teaching. Okay, and 5 साल तक पढ़ाया. After that, he took scholarship and he got some scholarship. Sorry, and he went to Germany to study. So then after he spent a lot of time there that how to carry scientific, like he spent a lot of time in how to carry scientific research in social science. Okay, so n- at that time sociology wasn't accepted in academic circle. Okay, so he pursued his doctrine and he also pursued two paper. Okay, one is philosophy of Montesquieu. It was written in Latin, you don't have to know this. And the other one is Division of Labor in Society. Okay, it was published in 1893 and it was originally written in French only. Okay, 2 years later, he published his work, this Rules of Sociological Method. Then after that, Rules of first he write that. Let me write it. Rules of Sociological Method.
Okay. After that, he published Suicide. Okay. Then after that, in 1898 around, I guess, he started his journal also of sociology. Okay. Then he was promoted as a professor in 1902 in Sorbonne, and there only he did his third major work, that is totemism. Okay, elementary form of religious life. But uh, he was appointed as professor in 1902, and he did this work in 1912. Okay, then after that, in 1913, he finally given the position of professor of sociology. Then in 1915, okay, he faced a personal tragedy. Okay, he lost his son. Basically, he was killed in the World War I fight. So we have to see the impact of these things on his study also. And in 1917, he died. So basically, what were the social circumstances in the society which influenced him to write these works or do this research work? Okay. French society was in a turmoil, basically. Okay. In 1870, he was just 12 years old, and there was a war going on between France and Germany. Okay. सो बेसिकली क्या अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखते हैं ना, जो जर्मनी था, इट वांटेड टू मर्ज ऑल द जर्मनी स्पीकिंग states together. Okay, so France wasn't much prepared at that time, and बहुत humiliating defeat face करनी पड़ी थी. ठीक है, और ये जो एरिया था largely it was influenced by Jewish. ठीक है, and they were blamed for the defeat of France. Okay. So they were basically Jewish were expected to prove their patriotism. So basically Emile Durkheim also faced a lot of humiliation. So worker after a few months there was a famous Paris Commune uprising. Okay, don't need to know this, just a brief outline about him. Okay, where workers revolted and declared independence from the national government. So army killed more than 40,000 workers in 15 days. Okay. So Emile Durkheim was basically witnessing everything. Okay. So finally what happened when Napoleon III was defeated? Okay. Democracy was established. So first president was McMahon, and he tried to become again dictator. Okay. And he dismissed the parliament. Okay. So basically this again resulted in chaos. ठीक है, एंड एजुकेशन was started polarizing. चर्च को एजुकेशन कंट्रोल करने लगा. ठीक है, so and many other scandals also break down, like Panama Canal issue and Dreyfus affair, these all things. So all these led to an intellectual impact on Durkheim. So what was that? Basically he was a very voracious reader. Okay, you can see the effect of Montesquieu and Rousseau in his writing, even Saint-Simon and Comte also. Okay, and basically he was so strongly influenced from Comte that he is even known as uneasy Comtean. Okay, and he was also influenced of Kant and other people, uh, Kant, Emile Bourdieu, these people also. So then he also published the review of Gemeinschaft and Gesellschaft of Tony's work. Okay, and he was also greatly influenced by Spencer's organismic analogy. Okay, so it all these things led to a development of perspective. Okay, so that perspective is basically the perspective of Durkheim.
So the perspective of Durkheim is social realism. Okay. So he assigned basically he gave importance to society, not to individual. We know this. Okay. Uh, so according to Durkheim, basically he was very behind this idea. He was really influenced by Emile Bourdieu. Okay, I guess this is the spelling. Okay, अरे यार, wait. Okay. Uh, According to him, reality exists at multiple level. Okay. So Durkheim said that reality at one level, okay, can't be understood in terms of factors that influence the lower levels. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर लेवल की जो रियलिटी है इट इज इमर्जेंट इन कैरेक्टर, और जब ये लेवल्स एक साथ कंबाइन करते हैं तो एक नया रिजल्ट आता है, नए लेवल्स बनते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डरकाइम, जो सोसाइटी है इट इज अ डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ रियलिटी. ठीक है. इट इज आउटसाइड अस. ओके. एंड इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन रिलेशनल और सोशल रियलिटी. ठीक है. तो इस सोशल रियलिटी को पढ़ने के लिए हमें एक डिस्टिंक्ट साइंस की जरूरत है जिसको उसने कहा सोशियोलॉजी. ओके. ठीक. सो ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर आल्सो, राइट. सो ही कंपेयर्ड सोसाइटी विद ऑर्गेनिजम्स आल्सो. ठीक है. सो क्या कहने का मतलब क्या था कि अ यूनिफाइड होल हैज नीड्स व्हिच आर फुलफिल्ड बाय द पार्ट्स. ओके. सो after this, we will see his subject matter. Okay. So his subject matter is basically social facts. We know this. ठीक है. And social reality is outside us. ये इसने बोला. ठीक है. So इसका independent existence है. इसने ये भी कहा social reality का. And इसने ये भी कहा कि it is constraining also and it shape our relations also. ठीक है. So इसको पढ़ने के लिए भी we need positive वो positive scientific methods can be used to study it. ठीक है. फिर उसके बाद ये कहता है कि जो ये सोशल रियलिटी है ना, जो बोल रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ सोशल फैक्ट्स. ओके. सो नाउ वी विल स्टडी सोशल फैक्ट्स. ओके. सो अब जो सोशल फैक्ट्स का स्टडी है, सी वट एवर यू नीड टू राइट इन योर एग्जामिनेशन, इट्स कवर्ड इन दीज नोट्स ओनली. ठीक है. जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल बी टेलिंग यू इन मच मोर डिटेल. ओके. सो अब ये पॉजिटिव साइंटिफिक मेथड्स की बात कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो यहाँ पे ना कुछ इन्फ्लुएंसेस है. जैसे कॉम्टे. कॉम्टे कहता है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, उनका कंसर्न ही नहीं होना चाहिए इंटरनल मीनिंग्स के साथ या मोटिव्स या इमोशंस जो इंडिविजुअल हैं. ठीक है. ठीक है. तो जो कॉम्ट जैसे थिंकर्स थे, क्या बोल रहे हैं वो कि भाई जो वो है इंटरनल मीनिंग्स हैं, मोटिव्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इंडिविजुअल्स के, उससे सोशियोलॉजिस्ट का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए. ठीक. देन वो क्योंकि बहुत से मेंटल स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं ना पर्सन के कॉन्शियसनेस में, तो आप उनको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते इन ऑब्जेक्टिव वे. ठीक है. सो डरकाइम ने अग्री करा कि सोशियोलॉजिस्ट शुड कन्फाइन देमसेल्व्स टू स्टडिंग सोशल फैक्ट. ठीक है. सो इसने कहा कि फर्स्ट और सबसे मोस्ट फंडामेंटल रूल जो है वो क्या है कि आप जो सोशल फैक्ट है ना
इसको आप हमेशा एक थिंग की तरह कंसीडर करोगे। इसका मतलब क्या है कि जो बिलीफ सिस्टम है, कस्टम्स है, इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के, या फैक्ट्स ऑफ सोशल वर्ल्ड है, इनको आप थिंग्स की तरह कंसीडर करोगे। ठीक है, इन द सेम वे एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक, अब जैसे कस्टम, ठीक है, सोशल फैक्ट सच एज कस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। अब ये एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल है और वो उनके बिहेवियर को भी कंस्ट्रेन करता है। ठीक है, तो डरकाइम का व्यू क्या था कि सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली इन टर्म्स ऑफ देयर पर्टिकुलर साइकोलॉजी या मेंटल स्टेट। इंस्टेड वो क्या है, वो एक कलेक्टिव बिलीफ है, वैल्यू है, लॉज हैं जो डायरेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को बाय सोशल फैक्ट्स दैट हैव एन एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन। I'm sorry. They believe that each science has its distinct exclusive subject matter. Okay, so just like every science has its own distinct exclusive subject matter, ऐसे ही उसने कहा सोशल रियलिटी भी एक इमर्ज कर रही है डिस्टिंक्टिवली, और सोशल रियलिटी भी आउटसाइड अस है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंट। तो सोशल रियलिटी जो थी ना, इसके अकॉर्डिंग इट इज मेड अप ऑफ सोशल फैक्ट्स। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आर सोशल फैक्ट्स? These are ways of acting, thinking, feeling, ठीक है, which are capable of exercising and external constraint upon us. Okay, and they are generally diffused throughout the society. Okay, and they can exist in their own independent. Okay, independent way. Okay, basically independent of individual manifestation. So from this definition that what is social fact, okay, we derive that social fact has these four important characteristics: that it is independent, it is external, it is constraining in nature, and it is general in nature. Okay, now the question arises how this social fact develops. Okay, so Durkheim said that in a morphological setting, okay, which consists of geographical and physical factors also, within which people interact with each other, which give rise to a social current. Okay, and when these currents get institutionalized, okay, they give rise to social facts. Okay, so as per Durkheim, social facts are of two types. One is material, other one is non-material. So basically, material social facts are those which occur in the concrete form, which exist in concrete form, just like constitution, density of population, architecture, okay, religion, okay, religion again important, and non-material social factors like feeling, thinking, ठीक है, social culture, social institutions, okay, collectivity, okay, और जो डरकाइन का फोकस था ना, he mainly focused on non-material social fact. Okay, ठीक है. According to Durkheim, non-material social facts, these are the causal facts behind material social fact. वो कहते हैं कि जब नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट होंगे तब मटेरियल सोशल फैक्ट होंगे. दीज आर द कॉज ऑफ मटेरियल सोशल फैक्ट. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जब कलेक्टिव वो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव एफर्वेसेंस आया लोगों में, ठीक है, this led to a development of material social fact called religion. Okay. After that, we will see. Now, Durkheim said कि जो ये है सोशल फैक्ट्स हमने देख लिया कि जो अल्टीमेट सोशल फैक्ट है ना, दैट इज कलेक्टिव कॉन्साइंस. ओके, या कंसाइंस कलेक्टिव या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. सो जो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है,
ये लिखा हुआ है ना। हम्म, कि जो टोटल सेट ऑफ बिलीफ है, बिलीव्स इन सेंटिमेंट कॉमन टू एवरेज मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, which form which forms a determinate system and has a life of its own. Okay, ये जो beliefs हैं, ये sentiments हैं, they can be moral, okay, which regulate our conduct, or they can be cognitive, which gives us knowledge about our environment. So that is collective consciousness. So फिर उसके बाद कहते हैं कि जो ये social fact है ना, ये इसका एक सबसेट है, ठीक है। ओके, एंड he even says that state, it derives its legitimacy from the conscience collective. Okay, uh, देखने में हमें ऐसा लगता है that state is, डरकाइम बोलता है कि state autonomous है, देखने में हमें ये लगता है, but ऐसा नहीं है, ठीक है। Then after that we will see the rules, I guess, of methodology. Yeah, okay. Then okay, uh, he also talked about this two ways which can explain social fact. कैसे हम दो तरह से सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ सोशल फैक्ट, डिटरमाइनिंग द फंक्शंस ऑफ सोशल फैक्ट, ठीक है। कॉज में क्या आएगा, कॉज ऑफ वन सोशल फैक्ट लाइज इन अनदर सोशल फैक्ट, ठीक है। सोशल फैक्ट जो है वो सर्टन प्री फंक्शनल प्री रिक्विसाइट है सोसाइटीज के लिए, ठीक है। अब जैसे कॉज ऑफ सुसाइड जो है वो इंडिविजुअल के विल में नहीं है, बट उसको हमें वेरियस अदर सोशल फैक्ट्स के साथ भी देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन, इंटीग्रेशन, सोशल ऑर्डर, ठीक है। और वो कहते हैं कि कुछ सोशल फैक्ट जो है वो फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट की तरह है, कैसे वो इम्पोर्टेंस है फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, कलेक्टिव कॉन्साइंस। ओके, नाउ रूल्स फॉर स्टडिंग या मेथोडोलॉजी। ओके, अब इसने ये बोला ना भाई, जो ये है सोशल फैक्ट है, ये एक्सटीरियर है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ये सोशल फैक्ट्स है ना, दीज आर डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो थ्रू डिफ्यूज थ्रू आउट द सोसाइटी, सो देयर इज अ पैटर्न इन देम, ठीक है। और जो इनके बीच का कनेक्शन का जो पैटर्न है ना, हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन हम इन पैटर्न्स को जब ये पैटर्न्स बन जाते हैं तो हम एक जनरलाइज डिराइव करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस वजह से सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। सो देन इसने कुछ स्टेप्स बोला फॉलो करने के लिए, रूल ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन एंड रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन। हम रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, वो कहता है कि जब हम किसी भी सोशल फैक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज इफ दे आर थिंग्स। ओके, थिंग्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि दीज आर बेसिकली entities which have a specific certain characteristics, okay, and they are also independent of observer, ठीक है। and देन जो भी यहाँ पे इसका और भी इस जो फर्स्ट रूल का नोशन है, उसका ये नोशन भी क्या है कि भाई जो भी तुम्हारा प्री कंसीव्ड बायसनेस है, या जो भी नोशंस है किसी भी सोशल फैक्ट को लेके, उसको स्टडी करने से पहले उस नोशन को, प्री कंसीव्ड जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको अबैंडन करो, ठीक है। तो हमें सोशल फैक्ट्स को उसी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके एक्सटर्नल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में, जिनको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देन कहते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन देयर कलेक्टिव मैनिफेस्टेशंस रादर देन इंडिविजुअल। ये हमें पता ही है, दरकाइन तो कहते हैं सोसाइटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल।
फिर कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन है सोशल फैक्ट्स का वो डेफिनेटिव होना चाहिए, डेफिनेट एज पॉसिबल होना चाहिए, डेफिनेटिव एज पॉसिबल। एंड हमें इसीलिए मतलब जो भी हमने सोशल फैक्ट लिया है हमें उसको बहुत क्लियर कट डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। देन नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि भाई इसने क्लासिफाई करा और डिस्टिंग्विश करा सोशल फैक्ट को एज नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल, ठीक है, और फिर कंपैरेटिव मेथड यूज करे। अब उससे पहले जो क्लासिफिकेशन का जो रूल था ना उसमें ही यूज्ड क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। कहते हैं भाई जो सोशल फैक्ट है ना वो नॉर्मल है इन रिलेशन टू गिवन सोशल टाइप, जब वो एक एवरेज सोसाइटी में उस टाइम में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब स्टेटिस्टिकली नॉर्मल है, ठीक। फिर वो कहते हैं, फिर वो एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि भाई नॉर्मल और पैथोलॉजिकल को डिटरमाइन करने के लिए उसने कहा था ना कि एक रेट पे अगर मर्डर हो रहे हैं वो भी फंक्शनल है, ठीक है। और अब जैसे जो रेयर रेयर चीजें हैं, रेयर फैक्ट्स हैं, जैसे विडो विडो रीमैरिज, ये कहते हैं कि ये नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। पर जो चीजें मेजोरिटी में होती रहती है, जैसे मेजोरिटी को जो इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, जैसे एपिडेमिक है, दैट इज पैथोलॉजिकल, ओके। सो जैसे कि कहते हैं कि अभी अभी जब हम कलेक्टिव कॉन्साइंस पढ़ रहे थे ना, तो जैसे इसने यहाँ पे कहता है ना कि नॉर्मल पैथोलॉजिकल की बात कर रहा है कि एक नॉर्मल रेट ऑफ सुसाइड जब होता है, ठीक है, सुसाइड हो रहा है एक सोसाइटी में, बट जब तक वो कम है वो नॉर्मल है, बट जब वो बढ़ जाए तो वो पैथोलॉजिकल है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एक चीज और कहता है कि अगर जब एक बार सुसाइड हो गया है, वंस द सुसाइड इज कमिटेड, तो जो पूरी सोसाइटी है ना, होल सोसाइटी, इट वर्क्स टू रीइंफोर्स द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसने ये बोला। फिर इसने कंपैरेटिव मेथड यूज करे, ठीक है, कहते हैं कि वी मस्ट बिल्ड अ क्लासिफिकेटरी टाइपोलॉजी ऑफ सोशल फैक्ट्स, ठीक है। इसकी स्टडी ऑफ सुसाइड में वो दिखता है, इसने सुसाइड को 4 टाइप में डिवाइड करा, सिमिलरली इन द स्टडी ऑफ दैट डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो, ठीक। फिर उसके बाद रूल ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक। इसमें ये क्या कह रहा है कि वी शुड एक्सप्लेन सोशल फैक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो जो भी आपने ऊपर रूल्स फॉलो करे हैं उससे पैटर्न निकल के आया है, उस उससे एक जनरलाइजेशन निकल के आएगी, वी शुड डिराइव दैट जनरलाइजेशन, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल study his suicide study, I guess. Okay. सो इसकी क्रिटिक भी है कुछ सोशल फैक्ट के। कहते हैं कि डरकाइन जो है वो ज्यादा कंसर्न था इन मेकिंग ऑफ सोसाइटी रादर देन डिस्क्राइबिंग अ मेथोडोलॉजी। सोसाइटी 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 पे ही फोकस था ना, ठीक है। और इसका जो एम्फेसिस था वो यूनिवर्सलिस्टिक और जनरल थ्योरीज पे वो नहीं, his emphasis on universalistic and general theories didn't have much practical significance for all their encompassing nature, ठीक है। तो मर्टन कहता है ना मिडल रेंज थ्योरीज जरूरी है। स्टीफन ल्यूक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक, ये कहता है कि डरकाइम ने एम्पेरिसिज्म और मोरलिज्म को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया और इमोशंस और इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और ये पीटर बर्जर भी ये इसको एक्यूज करता है कि भाई इसने इनजस्टिस करी है टू द डिसिप्लिन बाय इग्नोरिंग इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इन हिज बिड टू ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर दिया। और बर्जर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल इन सोशल ऑब्जर्वेशन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम सोशल फैक्ट इन्फ्लुएंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंटली, ठीक है। वेबर कहते हैं सोशल फैक्ट डोंट एग्जिस्ट एज थिंग्स इन देयर ओन राइट वेटिंग टू बी गैदर्ड लाइक पेबल्स ऑन बीच, ठीक है। सोशल फैक्ट्स जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर है, ठीक है, और उनका इन्फ्लुएंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन इंटरप्रिटेशन, और इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड करते हैं, ठीक है।
वेबर तो था ही इंटरप्रिटेटिव थिंकर. So we are done with the social fact. Let's start with the suicide. Okay. So basically, he defined suicide as all the cases of death resulting directly or indirectly from a positive or negative act of victim himself, which he know that it will produce this effect. Okay. Then so let's read it from here. Is any case of death caused by directly, indirectly, positive or negative action of the victim himself, which he knows will produce this result. Okay. So what are these actions? Are two types: positive and negative. Positive is it is taken by individual to end his own life. कि भाई पॉइजन लिया है, ठीक तो पक्का मरना ही है, ठीक है. खुद को शूट कर लिया है, ठीक है, या हैंग कर लिया है. नेगेटिव क्या होगा कि भाई सपोज बिल्डिंग में रह गए हैं, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, यू स्टेड इन द बिल्डिंग, स्टेड बैक इन द बिल्डिंग, ठीक है. सो दैट इज अ नेगेटिव एक्ट, ठीक, कि आपने कुछ करा ही नहीं जिससे की वजह से डेथ हो गई. तो अब क्या हो रहा था? ओके. देन नाउ व्हाट ही डिड कि 19th सेंचुरी में ना, जब सुसाइड रेट बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, इसने ना डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर, ठीक है. कहाँ से? यूरोपियन कंट्रीज में, जब एक क्वासी जुडिशियल ऑफिसर होता था, कॉरिनर. ओके. ये सर्टिफाई करता था अननेचुरल डेथ को. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड फोकस ऑन कि ये जो ये कॉरिनर है, ये ही सर्टिफाइड करता था अननेचुरल डेथ को, ठीक. तो जब वो सुसाइड रेट बढ़ रहा था, ठीक, कि भाई लोगों ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो ये कह रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म, वेदर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, बर्डन्स ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इनकी वजह से हो रहा है. बट इसने साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. क्यों? क्योंकि इसने डाटा की हेल्प ली, ठीक है. तो इसने कहा कि जो सुसाइड रेट है, मतलब ही फाउंड दैट देयर वाज अ रिमार्केबल कॉन्स्टेंसी ऑफ सुसाइड रेट ओवर अ ईयर, ठीक है. सुसाइड रेट काफी कांस्टेंट ओवर द ईयर जब तक सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक. तो इसने कंक्लूड करा कि हर सोसाइटी का एक सर्टेन एप्टीट्यूड है फॉर सुसाइड. तो देयर इज अ देयरफॉर कंट्रीब्यूट फिक्स्ड कोटा ऑफ सुसाइड, ठीक है. तो रियल कॉज जो है वो साइकोलॉजिकल नहीं है. ओके. एंड डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ सुसाइड इज सोशल, ठीक. एंड सम बिकम prone to this social cause and commit suicide. ओके. सोशल फिनोमिना है उसके लिए. ओके. तो इसके अकॉर्डिंग जो ये है सुसाइड है, इट इज द रिजल्ट ऑफ सुसाइडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, which compose of varying state of integration and regulation in the society. ओके. तो जो ये फोर्सेस हैं, इनको सोशल करंट्स की तरह कंसेप्चुलाइज किया जाता है, कंसेप्चुलाइज करा, ठीक है. इन्होंने इसने इनको सोशल करंट्स कहा, ठीक है. जिस इन करंट्स के इन्फ्लुएंस में इंडिविजुअल आता है, तो उसकी टेंडेंसी टू कमिट सुसाइड बढ़ जाती है, ठीक है. फिर उसने डाटा स्क्रॉल करा और उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, ठीक है. ये पैटर्न था. उस पैटर्न से उसने 4 तरह के सुसाइड बताए. ये रेगुलेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये थे हमारे सुसाइडोजेनिक फोर्सेस, ठीक. सो इसने कहा कि जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इगोइस्टिक सुसाइड, ठीक है. ये जो इगोइस्टिक सुसाइड जो लोग करते हैं, दे हैव नथिंग मीनिंगफुल इन गोल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है. तो ये मतलब ये खुद को सोसाइटी से ना ऊपर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं जब ये मरते हैं, ठीक है. सो और इगोइस्टिक सुसाइड में जब सॉलिडारिटी है, मतलब जो रेट ऑफ सुसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिडारिटी के, ठीक. तो उसने ये पैटर्न ऑब्जर्व ऑब्जर्व करा किसमें, कि जो भाई रेट ऑफ सुसाइड है वो प्रोटेस्टेंट में कैथोलिक से ज्यादा है, मेन में वुमेन से ज्यादा है, अनमैरिड में मैरिड से ज्यादा है, ठीक है. उसके बाद ही he talked about
अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, अदर्स बिफोर मी। ठीक है, ये दो सोसाइटीज जहाँ पे जो सोसाइटी के रूल हैं, ठीक है, सोसाइटी के रूल हैं वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक, सुसाइड, जैसे जौहर या सती। तो सुसाइड एक्सट्रीम सॉलिडारिटी की वजह से हो रहा है। ओके, ठीक। एंड आफ्टर दैट एनोमिक, एनोमिक ही रहा, एनोमिक, जब सोसाइटी में जब जब सडन चेंज आता है तब तब सुसाइड होता है। ठीक है, अब जैसे कोई आदमी बहुत गरीब है, हमेशा से गरीब है, वो कभी भी सुसाइड कमिट नहीं करेगा। बट कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर और वो एकदम से गरीब हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए वो सिचुएशन बहुत चेंज हो गई ना, मतलब जिसको हम वो कहते हैं नॉर्मलेसनेस, है ना, नॉर्मलेसनेस या एनोमी। ठीक, तो अब जैसे जैसे नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन होगा, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मेटिव डीरेगुलेशन होगा, यानी जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आएगा वैसे वैसे सुसाइड होंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉर्म्स और कॉन्ट्राडिक्टरी नॉर्म्स। ठीक है, फिर आता है फैटलिस्टिक सुसाइड, एक्सेसिव सोशल रेगुलेशन की वजह से होता है। ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, तो जो वो पर्सन है इट बिकम्स होपलेस। ठीक है, तो उसके सामने जो रास्ता है दैट इज द सुसाइड ओनली। ठीक है, जैसे स्लेव्स हैं, ठीक, या ओल्डर चाइल्डलेस मैरिड वुमेन। ठीक है, फैटलिस्टिक सुसाइड। ओके, नाउ वी विल सी द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ स्टडी ऑफ सुसाइड। ठीक है, बहुत से क्रिटिक थे। ठीक है, जैसे एक हॉलबैक्स करके है, माइट बी प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, दिस इज द थिंकर, ये है। ठीक है, अब basically what he tried to refine Durkheim's work. Okay, he didn't challenge his scientific approach in the study of suicide. Okay, but he said कि डरकाइम ने ना uh, जो ये था रिलीजियन है इसको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, ओवर एस्टिमेट कर दिया रिलीजन के इंपॉर्टेंस को इन डिटरमाइनिंग द सुसाइड रेट। ओके, कि जैसे यहाँ पे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स की बात हो रही है ना, ये इस पॉइंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि there is a difference but he found that the difference in suicide rate between living in urban and rural areas, ठीक है, rather than between Catholics and Protestants, मतलब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से ज्यादा तो इस अर्बन और रूरल एरिया के बीच में जो सुसाइड रेट का डिफरेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, देन फिर एक एक और है क्रिटिक इसका, गिब्स एंड मार्टिन। गिब्स एंड मार्टिन, ओके, they believed कि जो डरकहाइम है he had failed to use sufficiently rigorous method. Okay, Durkheim कभी कभी use the concept that could not be directly observed or directly measured. Okay, so he did not entirely followed a positivist approach according to them. ठीक है, तो they suggested that Durkheim failed to define the that concept of integration sufficiently. कहते हैं हाउ कैन यू डिफाइन इंटीग्रेशन विद अ पॉजिटिविस्ट मेथड। ठीक है, फिर आता है डगलस। ओके, ही वाज अ इंटरैक्शनिस्ट। तो ये कहता है कि पहले तो सबसे पहले तो ये ऑफिशियल डाटा को ही क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है, और जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन करता है, कहता है कि वो तो किसी भी सडन डेथ को सुसाइड बोल देगा, और वो हो सकता है अगर किसी ने सुसाइड करा भी हो बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल लाइक फ्रेंड्स फैमिली वो उसको एज अ सुसाइड रिपोर्ट ही ना करे। ठीक है,
फिर वो डगलस कहता है कि जो ये है डरकाइम है, इसने सारे सुसाइड्स को सेम टाइप ऑफ एक्ट कहा, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द मीनिंग अटैच्ड टू द एक्ट, ठीक है, बाय दोज इन्वॉल्व्ड। अब इसमें जो ये इसका डगलस है जो इसके दो क्रिटिक देता है, तो जो ये सेकंड क्रिटिक है ना जिसमें वो कहता है कि जो डरकाइम है वो सारे सुसाइड्स को सेम टाइप का एक्ट बोल रहा है बिना इन्वेस्टिगेट करे कि भाई व्हाट इज द मीनिंग अटैच्ड टू द एक्ट। ओके, तो डगलस बोलता है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह का सुसाइड होता है और उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। सपोज एक बिजनेसमैन एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में खुद को मार रहा है, खुद को मार लेता है बिकॉज उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया, ठीक है, सो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एन एल्डरली इन्यूट, ठीक है। इन्यूट इज एस्किमो जो खुद को मार लेते हैं या खुद को स्टार्व कर टू डेथ कर लेते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सोसाइटी जब फूड शॉर्टेज होता है, ठीक है, तो हर एक्ट का मोटिव डिफरेंट है। ओके, देन आफ्टर दिस एक इसमें एटकिंसन है, ठीक है, फिनोमिनोलॉजिस्ट है, ठीक, तो ये तो सीधा सा ये तो फिनोमिनोलॉजिस्ट है तो ये ऑब्वियसली इसकी साइंटिफिक अप्रोच को ही वो करेगा, चैलेंज करेगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा ही बोल देगा कि भाई तुम सुसाइड को स्टडी कैसे कर सकते हो। एज पर हिम कॉरनर कॉरनर क्रिएटेड सुसाइड, वही डाटा को ही क्वेश्चन कर रहा है ये, ठीक है। और वही जो ये पॉइंट्स है वी हैव कवर्ड इट, ठीक। नाउ आफ्टर दिस वी विल बी कवरिंग रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो आई गेस, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं।